لیکن آپ سارے دوست بھائی یہاں موجود ہیں. ہم آئے ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, ٹرشری کیئر ہاسپٹل. تو اس کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے, بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے, کیا ہے کیا نہیں. اچھا, یہ ہاسپٹل 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ منسوخ کیا گیا اور قائد اعظم کی انسٹرکشن یہ تھی کہ اس ہاسپٹل کے اندر کامن مین ہو, وومن ہو, انڈر پرویلیج جو لوگ ہیں ان کی ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, جو اکراس دا بورڈ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں. اس کے اندر یہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, اس کے اندر اس ہاسپٹل کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں. بیسک میڈیکل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے, کالج آف فزیکل تھراپی ہے, اسکول آف نرسنگ ہے, اسکول آف پیرامیڈکس ہے, آکوپیشنل تھراپی کا انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی, یہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں. ان سارے انسٹیٹیوٹس میں پورے پاکستان سے لوگ آگے سرو کرتے ہیں. تو یہ گلوری ہے جناح ہاسپٹل کی, ایک ڈیوٹی یہی تھی اس کے اندر. اب انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ اسٹک ہوا ہے. ہماری پروموشن پچھلے 10 سال سے جو اتنا بڑا کورٹ کیس چلا ہے اس کی وجہ سے اسٹک تھی. لیکن 3 جو ڈاکٹرس کی, پروفیسرس کی جو پروموشن ہوئی ہے اس کے بعد ہمارا ڈیو رائٹ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی شارٹ بریف ہسٹری تھی جناح ہاسپٹل کی, میں نے آپ کو سمجھایا. نیکسٹ ڈے ڈاکٹر نعیم جو ہے پریزیڈنٹ آپ کو اس کے بارے میں اور ڈاکٹر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ. میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے 2 چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں بات ہوگی کہ ڈاکٹروں کی پروموشن جو ہے یہ تو پچھلے 14 سال سے نہیں ہوئی, تو اچانک ان کو کیا خیال آ گیا کہ 14 سال سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے تھے تو اٹھ کے آ گئے. 14 سال سے ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی فیڈرل اور پروونشل کا میٹر چل رہا ہے, اس لیے رولز نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ڈیماکا نہیں ہے. ہم یہ واحد کو سمجھنے وہ قوم ہے جو 14 سال سے بغیر پروموشن لیے میں اپنا کام جاری کیے ہوئے تھے. میرے خیال سے کسی اور علاقے میں اگر ایسا ہو تو سب لوگ سڑکوں پر نکل آئے. لیکن جب اچانک یہ ہوا کہ 4 5 6 لوگوں کی پروموشن ہو رہی ہے یا نرسز کی ہو رہی ہے, ان کے لیے رول فیڈرل گورنمنٹ کے رول اڈاپٹ کیے گئے, تو پھر ہم لوگوں کے لیے رول کیوں نہیں اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں؟ تو سراسر ایک طریقے سے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اس سسٹم سے فرسٹریٹ ہو کے لوگوں نے آہستہ آہستہ یہاں سے نکلنا شروع کیا. کچھ لوگ ریٹائر ہوئے, کچھ لوگ باہر چلے گئے, فارن کنٹریز میں ان کو اچھی اپرچونیٹیز ملی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو اسپتال ہے وہ بالکل ڈاؤن فال کی طرف جانے لگا. نئے لوگوں کی انڈکشن نہیں, پرانے لوگ ریٹائر ہو رہے, کچھ لوگ چھوڑ کر جا رہے. 14 سال سے انہوں نے پروموشن کا, اور کچھ لوگ پروموشن کے آسرے پر ریٹائر ہو گئے. تو یہ بڑی بریف لمبی ہسٹری ہے. آخر میں فرسٹریٹ ہو کے ہم لوگ سمجھنے کی اس طریقے سے پریشان ہو کے یا وہ باہر جائیں یا کچھ اور کریں. لیکن اس کا ایفیکٹ کس پر پڑ رہا ہے؟ ادارے پر. اور ادارہ جو ہے مریضوں کی ظاہر ہے علاج کر رہا ہے, الٹیمیٹلی اس سب مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے جو اس اسپتال میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آتے تھے اور علاج کرانے کے لیے. 2-3 چیزیں جو ہے وہ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر رول اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں نرسز جو درمیان کے ڈاکٹرز ہیں, جو اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, ان کے لیے وہ رول اڈاپٹ کر کے اس میں کیا حرج ہے؟ جبکہ عدالت نے بھی ان کو کہا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے رول اڈاپٹ کر کے یہ چیزیں کر لیں. مجبوری میں آ کے ہمارے کچھ ڈاکٹر عدالت میں بھی گئے اور وہاں سے بھی ان کو انسٹرکشن ملی ہے. عدالت چاہتی ہے ہماری پروموشن ہو, ان کو انسٹرکشن ملی ہے, ہمارا جو ڈائریکٹر ہے وہ چاہتا ہے, تو آخر رکاوٹ کہاں پر ہے؟ کون سی ایسی چیزیں جو ان کو روک رہی ہیں؟ دوسری ایک جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے خلاف کہ جو جناح اسپتال کی ایگزسٹنگ پرانے ڈاکٹر اسٹیشن کے ڈاکٹرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نئے ڈاکٹر ہائر نہ ہو. یہ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے, یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اسپتال میں نئے ڈاکٹر اڈاپٹ ہوں, لیکن ایک رول بتایا گیا اس کے تحت. وہ رول یہ تھا کہ پرانے ڈاکٹروں کی پروموشن ہو, ان کی سینئرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد ہم نے انڈکشن کریں. آپ آخری سیڑھی پہ چڑھنا چاہتے ہو کہ انڈکشن ہو جائے, نہ ہو جائے, بھائی ہو جائے سب چیزیں, لیکن ہماری پروموشن میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تو اس طرح سے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو بھائی ڈائریکٹ نماز تو نہیں پڑھنی نا, وضو کرنا ہے, نیت کرنا ہے. تو اسی طرح سے انڈکشن کے لیے بھی یہ کہ آپ انڈکشن بالکل کریں, لیکن جو آپ نے پرانے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کی ڈیو پروموشن ہے اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ انڈکشنز کے خلاف ہیں. یہ لوگ انڈکشنز کے خلاف نہیں ہیں. اگر اس کو رول کے تحت کیا جائے, پرانے ڈاکٹروں کی سینئرٹی کو پروٹیکٹ کر کے ان کو پروموشن دے کے اس کے بعد پہلے انڈکشن کیا جائے, اس کا بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. اور تیسری چیز جو میں نے کہا کہ یہ جو پروموشن والا ایشو ہے
ये प्रमोशन वाला जो इशू है, अब सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में कभी फेडरल गवर्नमेंट कहती है सिंध गवर्नमेंट करेगी, सिंध गवर्नमेंट कहती है फेडरल गवर्नमेंट करती है, इस तरीके से हमने 14 साल तो सफर किया। अब 14 साल के बाद एक टाइम कैसा आया कि कुछ लोगों के लिए फेडरल गवर्नमेंट के रूल अडॉप्ट करके उनकी प्रमोशन कर दी गई। अगर उनके लिए ये रूल अडॉप्ट हो सकते हैं तो हमारे साथ सुधरने जैसा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके से आए हुए मरीजों का इलाज और खिदमत कर रहे हैं, अगर उन सब की प्रमोशन हो सकती है तो हमारा ड्यू राइट है कि जबकि हमारी सारी प्री रिक्विजिट फॉर प्रमोशन मौजूद पूरी है, और अगर आप किसी को करंट चार्ज देते हो प्रमोशन का तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिजर्व करता है, लेकिन अभी चूंकि उसको प्रमोशन नहीं मिली, जैसे डॉक्टर शहबाज को करंट चार्ज मिला है प्रोफेसर का, तो उसका मतलब प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसको सिर्फ करंट चार्ज पर कर गया, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं करंट चार्ज की, हाँ ये डिजर्व करता है, मिला नहीं। तो अगर ये सब चीजें हैं तो फिर हमारे साथ ये इस किस्म की ज्यादती को बंद किया जाए। हमारी जो आला काम है वज़ीर आला से उनसे ये अपील है कि भाई इस मामले में फौरी तौर पर इंटरवीन करें कि डॉक्टरों को अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो वो कहाँ से खिदमत करेंगे, अस्पताल ग्रेजुअली डाउन होता चला रहेगा, और ये कोई आम सी बात नहीं है। तो इसी तरह से दूसरा ये कहा जाता है कि लोग फेडरल गवर्नमेंट, ना हम फेडरल गवर्नमेंट के आदमी है ना सिंध गवर्नमेंट के आदमी है, आप लोग मिल बैठ के मसले को खुद हल कर दें। 10 साल से एक छोटा सा मसला, ये कोई ऐसा मतलब छोटा दफ्तर तो नहीं, बड़ा अस्पताल है, इसकी पॉलिसीज बनती है, तो ये 10 साल की चीज नहीं हो सकती कि इसको फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना है, इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाना है। हम तो किसी को फेवर नहीं करते, जो भी चला रहा है अच्छा चला रहा है, लेकिन एक तरफ ये हो जाए मसला ताकि पता तो चले कि किसी एक के पास हम जाएं। अब हम सिंध गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आपकी वज़ीर आला साहब बयान देते हैं कि ये अस्पताल क्योंकि हमारे पास नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि फेडरल गवर्नमेंट का भी हमने टेक ओवर नहीं किया। तो 10 सालों में ये मिल बैठ के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और अगर वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी कोर्ट के डिसीजन में के पास क्लियर कट डायरेक्टिव थे कि आप ये जिनकी ड्यू प्रमोशन है सिंध गवर्नमेंट उनको दें, तो इस प्रमोशन में कुछ क्या हर्डल है क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। डॉक्टर नसीर, डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर नईम ने बताया कि हम आज तक किस वजह से यहाँ पे सब बैठे होंगे। तो देखिए डॉक्टर्स जो है ना इस मुल्क में सबसे पिसी हुई आवाज़ है। अगर हम कहीं अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं तो कहते हैं आप लोग तो मसीहा हैं। अब आप तो सोच सकते हैं किसी इदारे में किसी की प्रमोशन ना हो 10 साल तक, उसकी पे में कोई इंक्रीमेंट ना हो, उसे कोई अलाउंसेस पे ना दिए जाए, तो उस मसीहा ने क्या अपने घर नहीं चलाना, किस तरह चलाएगा। और अब हम सब जो लोग बैठे हैं हम सब हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और हमारे साथ हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस वक्त जिला हॉस्पिटल छोड़ के चले गए हैं, इस वक्त वो मिडल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज में सेटल्ड हो गए। तो जब हमें इतना सप्रेस किया जाएगा तो हमारा दिल नहीं चाहेगा कि हमें भी कहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो हम छोड़ के हम भी अपना रास्ता बदल लें। और गवर्नमेंट का बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी सब बात जानते हैं कि हेल्थ के ऊपर लोगों का कोई उनको वैल्यू नहीं है कि हेल्थ के अंदर किस तरह से लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, चाहे वो मरीज हो या डॉक्टर हो। जब तक आप डॉक्टरों के जो ड्यू राइट्स हैं उनको आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आप कैसे समझते हैं कि अपने डॉक्टर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी बहुत बेहतर दिखाएंगे और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हम फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब कितना ज़्यादा वक्त गुजर गया है और जब ये फैसला आया है कि हमारे 3 डॉक्टर की प्रमोशन हो गई है तो हमारी प्रमोशन में कौन सी रुकावट है। तो हम वो रुकावटें जानना चाहते हैं। अगर उनकी प्रमोशन हो सकती है तो हमारी भी प्रमोशन होनी चाहिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा हुआ है या क्या किया है, और अगर ये कोई सुपरवाइजर है जिन लोगों को हमने ट्रेन किया वो जन अस्पताल छोड़ के बाहर दूसरे इदारों में काम कर रहे हैं, आज जो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है और कोई प्रोफेसर होने के लिए काम बोल रहा है, जो हमारे ट्रेन किए हुए लोग हैं और हम उनके ट्रेनर थे, उनके टीचर थे एक तरीके से, तो हम जो है उसी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर बैठे हुए। तो अगर देखेंगे टेक्निकली आज मुझे इस बात का हम नहीं है कि मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएट तरक्की करके, लेकिन मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो तरक्की करके आगे जा रहा है और मैं उसी तरह, और जब भी मुझे मिलते साहब वही मेडिकल ऑफिसर है, मैंने कहा हाँ मेडिकल ऑफिसर, अल्लाह के करम से भी मेडिकल ऑफिसर, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, तो इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट के पास हम सेक्रेटरी के पास कई दफा मिलने की अपनी कोशिश की, सेक्रेटरी जो है उसके पास शायद हमारे लिए टाइम नहीं है या कोई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज है, प्रेशर है उनके ऊपर कि वो इस मामले को सीरियसली ले नहीं रहे, जबकि अदालत से भी डायरेक्टिव मौजूद है वो रोकने के मुख्तलिफ किस्म के बयान
आज ये हो गया, आज ये हो गया। हमारे एक प्रमोशन की गई नॉन टीचिंग कैडर में ग्रेड 18 में, वो भी प्लेसमेंट 6 महीने से उसमें डकाया गया, उसका भी किसी ना उस प्रमोशन का तस्करा हमारे पेपरों में, ना वो टीचिंग कैडर की प्रमोशन, एक जनरल कैडर की प्रमोशन है। तो सेक्रेटरी है तो इससे बड़े मामले पे कई दफा हमने अप्रोच करने की कोशिश की, अब पता नहीं कि उसमें क्या पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर कि उस मामले को बिल्कुल नॉन सीरियसली टैकल कर दें और बजाय उनके पास टाइम नहीं। हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, उनके पास टाइम था लेकिन सेक्रेटरी से हमारे पास मुलाकात के लिए टाइम नहीं निकल सका। प्रमोशन जो थी वो सबकी नहीं हो रही थी कि भाई इसमें एक हार्डल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का, हम रुके हुए थे। फिर इन 3-4 डॉक्टर्स की प्रमोशन हुई जिसमें डॉक्टर याब जमाली थे, डॉक्टर सुमी जमाली थे और डॉक्टर तारिक महमूद थे। हमें उनकी प्रमोशन पे कोई करार नहीं था, ये बिल्कुल उनके रिटायरमेंट के करीब के दिन थे। फिर उसके बाद हमारी डीपीसी भेज दी गई कि आपकी डीपीसी चली गई है और कुछ दिन में आपकी नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। इस मामले में हम डायरेक्टर से क्लोज कॉन्टेक्ट थे, तो उस डीपीसी आज आ रही है कल आ रही है, आज आ रही है कल आ रही है। फिर हमें जब हमने कहा कि अब डीपीसी हो चुकी है, प्रमोशन की बोर्ड बैठ चुका है और उसने इजाजत दे दी है, तो लीगली तो आप 40 दिन के अंदर आपके ऊपर एक बर्डन होता है कि आप उसको नोटिफिकेशन करें। तो पता चला कि भाई इसमें कुछ आप पॉलिटिकल इशूज ऐसे आ रहे हैं कि प्रमोशन को रोका जा रहा है और इसी दौरान वो रिटायर हुए। फिर हमारे नए डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब आए, उनसे हम मिले, उन्होंने भी कहा था लास्ट मंथ के इस मंथ के एंड तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। तब हमने वेट किया, हमने हर मतलब समझ लें लीगल और जो पॉलिटिकल रास्ता था वो अपनाया। आखिर में तक आके हम उससे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं आप लोगों के तवज्जुह से कि भाई ऐसा कि अगर आप ये हमें बता दें कि आप लोग डिजर्व नहीं करते हो, आपका राइट नहीं है, आप एक गलत चीज मांग रहे हो जिस तरह हम लोग का लड़का मांगता है, तो फिर ठीक है हम बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी मीटिंग में बोलते हो कि आपका राइट है, आप डिजर्व करते हो, आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, तो फिर रुकावट कहाँ पर है? बेस्ट डॉक्टर्स हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की 36 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, तो आप उसमें जो थी टीम ऑफ द नेशन और हर जगह की रिप्रेजेंटेशन जहाँ से पंजाब की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की और उसकी गिलगित, हर जगह से लोग आते थे और विदाउट एनी पर्ची और सिफारिश सिस्टम, ठीक है। और बेसिकली इस हॉस्पिटल का या इसको इस चीज़ में चलाने का मकसद था कि हर चीज़ से हम सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं और यही एक फेडरेशन की अलामत थी जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और हम इन सब चीज़ों से बालातर होके सर्विसेज अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते थे। लेकिन एट दी सेम टाइम हमें भी अपनी सर्वाइवल चाहिए और आपने कहा है कि बहुत आसान है, आपका लाए मुल्क है, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम ओपीडीज बंद कर दें, वार्ड बंद कर दें, एक हंगामा करें, सड़कों पे आ जाए और दूसरी आवाम की तरह। लेकिन हम बेबस हैं, जब आपके सामने एक सिसकती आवाम आती है, मरता हुआ बंदा आता है, तो हम उनको इस तरह नहीं कर सकते। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर लिमिट पे जाएं और इसी तरह और हमारा भी ख्याल कि चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी लोग जो ऊपर हैं जो हमारे मसले को सॉल्व कर सकते हैं वो इतने बुरे होंगे कि हमारी बात नहीं सुनेंगे। डेफिनेटली हमने बहुत दफ़ा कोशिश की सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से मिलने की, लेकिन हमें ना टाइम मिला, उसकी क्या वजूहात थी नहीं। हम आखिरी लिमिट तक जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने मरीजों को सफ़र ना होने दें। इसी वजह से, और ये एक दिन से नहीं हो रहा, ये 2 साल से चक्कर चल रहा है, 2 साल से यही हो रहा है कि डीपीसी रखी जाती है, आखिरी वक्त में 1 घंटे पहले कैंसिल हो जाती है और इसी तरह इसीलिए हमें कहा जाता है बस अब कल होने वाला है। ये हम हर जगह जा चुके हैं, हम कोर्ट पे जा चुके हैं, हम बाहर अखबारों में लेकर आ रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन डेफिनेटली हमारा सबसे बड़ा एम है कि जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं वो सफल ना हो, हमारी सर्विसेज सफल ना हो। लेकिन आज हम मजबूर आ गए कि ऊपर के हुक्मरानों को अपनी आवाज़ पहुँचाएं थ्रू प्रेस क्लब और इसलिए हम यहाँ आए। हम आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि पेशेंट सफल ना करें। नवंबर 2020 का चलन ये है तो इनकी हुई और इसके बाद ये है जून का नर्सिंग स्टाफ की एवरेज फॉर 2021। उस वक्त हमें यही कहा था कि जब ये ग्रेड 20 to 21 की अलग सिलेक्शन बोर्ड है, ग्रेड 19 to 20 का अलग सिलेक्शन बोर्ड है, इस तरह हर सिलेक्शन बोर्ड का अलग अलग इजलास होगा, मीटिंग होगी, ये होगा, फिर आपको भी हो जाएगी। टेनिस क्लासेस तो नहीं हो रही है, टीपीसी हो रही है, फिर बता रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जो सिंध गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के हाथ में, मेरे हाथ में सिर्फ रिकमेंडिंग है फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, उनको फाइनल
20-30 हम डेली प्रोसीजर्स करते हैं और हमारी जो ओपीडी होती है गैस्ट्रो की आप आकर देखें 400 मरीज खड़े होते हैं। अब एक डॉक्टर आपके पास है जो कि कंसल्टेंट है, आप क्या समझते हैं कि वो क्या वो सुपर वुमेन है या मैन है, क्या कर लेगा? और जबकि वो उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको हरास किया जा रहा है हर तरीके से जो है। बाकी भाई ने सवाल करा था कि वो फीस ले रहे, देखिए फीस हमारी जेबों में तो नहीं जा रही है, अगर कोई ले रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है कि सब चीज़ों को देखा जाए। एक मैनेजमेंट होती है हॉस्पिटल चलाने की, जब आपके हॉस्पिटल सारे अफरा तफरी के शिकार होंगे, उसके एम्प्लॉय अफरा तफरी के शिकार होंगे, किस तरीके से लोग सर्विसेज देंगे? यही तो मकसद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, कि लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप लोगों को पता है कि जिला अस्पताल का स्टेटस क्या है? गवर्नमेंट ने इसको ऐसा मतलब एक कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि ना मीडिया के लोगों को भी नहीं पता कि जिला अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। और यही अच्छा दूसरी बात जो इनने बात की ना मरीजों के लिए, हम जो 14-15 साल के बाद निकले ना वो इसलिए है कि अब हमें लग रहा है कि सिचुएशन पानी स्तर से ऊपर गुजर गया, लोड बहुत ज्यादा है। अब जरूरत है ये लोग प्रमोट होंगे तो नए लोग नीचे आएंगे ना। अगर आपने उनको मेडिकल ऑफिसर के तौर पर रखा हुआ है तो नए लोग कैसे डट होंगे सिस्टम को चलाने के लिए? सवाल का जवाब प्राप्त। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, उसके खिलाफ रिट पिटीशन हुई सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 2000 के समय, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि कब फैसला होगा, वो कैसे सर्व करेगा सबको? आप गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट करे चाहे सवाल नहीं सुने, मैंने आपसे 3 सवाल किए थे।